اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو سبق چل رہا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اگر اسم کے بارے میں ہمیں یہ 4 چیزیں معلوم نہیں ہے تو اس وقت ہمیں اسم کو پہچاننے میں کافی زیادہ پریشانی ہوگی اور ہم نہ صحیح لکھ سکیں گے، نہ عربی میں اسم کو صحیح بول سکیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں ہمیں بنیادی طور پر 4 چیزیں پتہ نہ چل جائیں. ان میں نمبر 1 میں نے بتایا تھا اسم کی جنس یعنی اسم کی مذکر ہے یا مؤنث کو پتہ ہونا چاہیے. علامات میں پہلے سبق میں بتا چکا. نمبر 2 ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا جناب یہ اسم اس کا عدد کیا ہے، یہ 1 ہے 2 ہے یا کتنی اس کا عدد کیا ہے، 1 کے لیے بولا جا رہا ہے، 2 کے لیے بولا جا رہا ہے یا زیادہ کے لیے بولا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں تفصیل عرض کر چکا کہ 2 کے بارے میں کیا علامت ہوگی، 3 کے لیے کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اس کی تفصیلات ہو چکی. تیسرے نمبر پر جو اسم کے بارے میں بات تھی وہ تھی کہ اسم کے بارے میں اس کا عام اور خاص ہمیں معلوم ہو. یہ اسم عام ہے یا خاص ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اسم جو ہے نا اپنا یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تھا. اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اسم جو ہوگا عموم و خصوص کے اعتبار سے، مثالیں سب کچھ وضاحت میں کر چکا ہوں، مزید ٹائم اس پہ نہیں لگاتے. وہ اسم اپنے عموم و خصوص کے اعتبار سے 2 قسم کا ہوگا، یا معرفہ ہوگا یا نکیرہ ہوگا. ٹھیک ہے، معرفہ مطلب خاص اور نکیرہ عموم کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اب معرفہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ یہ 7 چیزیں اگر آپ کو کہیں پہ نظر آتی ہیں تو وہ معرفہ ہوگا. نمبر 1 اسم عالم. اگر کوئی عالم ہو، مثال کسی آدمی کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے کوئی بھی عالم ہو، کوئی نام ہو تو وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. نمبر 2 اسم ضمیر. ضمیر جو ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں نام کی جگہ پہ نام استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ نام کا متبادل جو استعمال کیا جاتا ہے یعنی ضمیر، وہ اگر ہو تو اس صورت میں وہ یہ ضمائر بھی اسم ہوتی ہیں، جیسے انتا ہوا، ہیا، ہما، ہم، اور انگلش کے اندر بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں. اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اشارہ کر کے قریب کا یا دور کا اشارہ کر کے بتایا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں اشارہ ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، سمجھے، نکیرہ سے وہ نکل جاتا ہے. اسم موصول ہوتا ہے کہ الذی، اللتی، الذین، موصول مطلب وصل، ملانے والا. ٹھیک ہے، باقی تفصیلات یہ کیا ہیں، کون کون سے ہیں، وہ آگے چل کے آئیں گے. فی الحال آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 7 چیزیں اگر اس میں کسی جملے کے اندر کسی لفظ میں ہمیں ان 7 چیزوں میں سے کوئی بھی اگر نظر آ گیا، ہمیں فوراً معلوم ہو جانا چاہیے کہ جناب یہ معرفہ ہے، نکیرہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ آگے معرف باللام کے لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، یعنی خود تو لفظ نکیرہ ہو لیکن اس کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہو. جیسے کتاب نکیرہ، اس کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا. ایسے مضاف الی المعرفہ مطلب کیا کہ کسی نکیرہ چیز کی نسبت معرفہ کی طرف کر دی جائے. جیسے کتاب یہ نکیرہ ہے، اب اس کتاب کی نسبت جو نکیرہ تھا اس کی نسبت زید کی طرف کر دی. زید جو کہ ایک معرفہ ہے، ایک خاص ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اس نکیرہ کی نسبت خاص کی طرف کی ہے. تو اب یہ جو نکیرہ تھا یہ خاص کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے یہ نکیرہ بھی اب کیا بن گیا جی، خاص بن گیا، معرفہ بن گیا. یہ ہوتا ہے مضاف الی المعرفہ، کہ معرفہ کی طرف نسبت کر دی جائے کسی نکیرہ کی تو اس سے بھی وہ نکیرہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسا کہ زید کی کتاب، زید کا قلم، زید کی بائک، زید کی فلاں فلاں فلاں. منادا جیسے پکارنا، آواز دینا، ٹھیک ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے، اپنے عام الفاظ میں بولے تو اوئے بات سن، تو مطلب اس طرح سے کچھ بھی ہو، پکارنا، بلانا. اگر کسی لفظ کے اوپر ہمیں حرف ندا داخل ہو جائے، جیسا کہ یا، یہ حرف ندا ہے، وہ کسی لفظ پہ نظر آئے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب اگلی جو اصل اور خاص بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بسا اوقات قرآن پاک میں یا عربی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے شروع میں لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ اس لام کو پڑھ رہے ہیں، اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے اوپر لام لگا ہوا ہے لیکن آپ اس لام کو نہیں پڑھ رہے. تو یہ ایک ہی حرف ہے، یعنی لام وہ لفظوں پر داخل ہے، آپ ایک جگہ پہ اس لام کو پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ دیکھیں میں نے اس کی مثال دی کہ الکتاب، ذالک الکتاب. تو یہاں پہ دیکھیے جو کتاب کے اوپر لام داخل کیا تھا تعریف والا، جب اس کو معرفہ بنایا تو یہ لام جو داخل کیا ہے جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ذالک الکتاب، یہاں پہ لام کو پڑھا جا رہا ہے. اور اب دوسری جگہ پہ دیکھیں السکینہ، آپ کو نظر آ رہا ہے السکینہ بالکل اخیر میں السکینہ، تو یہاں پہ السکینہ، لیکن لام کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ السکینہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح السکینہ کے ساتھ ہی آپ کو الرحمہ نظر آ رہا ہوگا، الرحمہ، یہاں پہ بھی اس کو الرحمہ نہیں پڑھتے بلکہ الرحمہ پڑھتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی
کہ الکتاب ہو, المسلم ہو, القلم ہو, المومن ہو, یا الملائکہ ہو, یا البیت ہو, تو یہاں پر آپ اس کو لام پڑھ رہے ہیں لیکن کہیں پہ آپ لام کو نہیں پڑھتے. تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک قاعدہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دیکھیے جی الف لام جو ہے اس کے اوپر جو داخل ہے, ٹھیک ہے, الکتاب کے اوپر جو الف لام داخل ہے اس میں ایک لفظ ہے حمزہ اور دوسرا ہے لام. تو اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں, مطلب ملانے والا حمزہ, جس کو مجبوری کی وجہ سے لیا گیا تھا کیونکہ خالی لام تعریف والا تھا, اس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے. تو نہ پڑھنے کی وجہ سے مجبوری تھی کہ کچھ حرکت لائیں, تو اس لیے ہم حمزۃ الوصل کو لام پڑھنے کے لیے لائے. لیکن جب ہم پیچھے سے کوئی لفظ مل جائے جیسے ذالکل کتاب, تو یہاں پہ دیکھیں ذالکل کتاب, کل تو کاف لام کے ساتھ مل رہا ہے, تو یہاں پہ حمزہ کی ہمیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ پیچھے سے کوئی لفظ پڑھنے کے لیے موجود تھا, تو ہم نے حمزہ کو ختم کر دیا. تو حمزہ ایک مجبوری میں استعمال ہوتا ہے, جہاں اس کی مجبوری ختم وہاں اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ حمزۃ الوصل. دوسرا ہے لام تعریف, یہ والا اصل ہے لام تعریف, یہ کسی اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو وہ اسم نکرہ اسم پہ داخل ہوگا تو وہ معرفہ بن جائے گا. سمجھے بات کو؟ اچھا, اس کے علاوہ اب اگلی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لام کہیں پہ پڑھنا کہیں پہ نہ پڑھنا, اس کا ہمیں فرق کیسے معلوم ہو؟ تو آسان سی بات ہے جناب, یہ حروف جو ہم نے شروع میں 28 پڑھے تھے, حروف الہجا جو ہم نے 28 پڑھے تھے, ان میں سے 14 حروف قمری ہیں, ٹھیک ہے, 14 حروف قمری ہیں, یعنی ان کو کہیں گے القمری, اور بقیہ 14 حروف الشمسی ہیں. تو جو القمری حروف ہیں, جو القمری حروف ہیں وہ یہ ہے حق, کا, خوف, عجب, غم ہے. سمجھا گی بات کی؟ قمری حروف کون سے ہیں جی؟ یہ جملہ ہے, حق, کا, خوف, عجب, غم ہے, یہ 14 حروف ہیں. اگر یہ 14 حروف کسی اسم کے کسی لفظ کے شروع میں آپ کو نظر آ جائیں, اور شروع میں یہ لفظ ان میں سے کوئی ایک لفظ ہو اور اس پہ لام داخل ہوا ہو, تو اس لام کو پڑھیں گے. اور یہ ہمیں اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے, القمری, القمری, القمری. دیکھیں یہاں پر قمری جو ہے اس کو جب قمری پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کے لام کو پڑھا جا رہا ہے القمری, ال, ٹھیک ہے. اور جو الشمسی ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہو الشمسی نہیں کہہ رہے بلکہ الشمسی کہہ رہے ہیں. تو القمری یہ 14 حروف آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. حق, ہا, قاف, کاف, الف, خا, واو, فا. ہا مثال الحق, قاف القوی, اور کاف الکریم, الف الاول, خوف الخبیر, واو الوہاب, فا الفوز, عین العزیز, جیم الجبار, با الباری, غین الغبی یا اسی طرح مزید میم المہیمن. تو اس طرح ہا اور اس طرح. تو یہ ہمارے پاس 14 حروف قمری ہیں. یہ اگر کسی اسم کے شروع میں ہوں گے تو آپ نے دیکھا, میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان کے لام کو پڑھا جائے گا. الشمسی جو حروف ہیں یہ اگر کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا. یہ بات آپ نے اچھی طرح سے نوٹ کر لی, اور اس کو میں نے آج آپ کے سامنے مزید دوہرا بھی دیا. اب میں آگے چلتا ہوں, مزید آپ کو ایک دو پوائنٹس بتا کر ہم اگلا ایک پڑھ لیتے ہیں, اگلا سبق, جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ چوتھی چیز کیا ہے جو اسم کے اندر ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ صرف آپ چند ایک دو میں باتیں ساتھ اور ایڈ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ الف لام یہ نکرہ اسم پہ داخل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لام جو داخل ہوتا ہے نا معرف باللام, لام کے ذریعے سے جو معرفہ بنانا ہے, تو ظاہر بات ہے کسی نکرہ پہ داخل ہوگا نا یہ لام, کیونکہ جو معرفہ ہے کوئی علم ہے تو علم پہ تو الف لام کو داخل کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ لام کے ذریعے سے معرفہ بنانا ہے. جو پہلے سے ہی معرفہ ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنانے کی کیا ضرورت. تو جو نکرہ ہوگا اس کو معرفہ بنانے کے لیے لام کو داخل کیا جاتا ہے, یعنی الف لام کو. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عرب ہیں وہ وہ زبان ہے ان کی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ بسا اوقات کوئی علم ہوتا ہے, سب کسی آدمی کا نام ہو, کسی جگہ کا نام ہو, لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر وہ جو نا الف لام داخل کر دیتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو بھائی وہ اہل زبان ہے, ان کی بات کو ماننا پڑے گا, صحیح ہے. ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ
इन 7 में से कोई एक अलामत किसी इस्म पे होगी, ठीक है। ये अलिफ लाम जो है जो पहले से मारिफा हो उसके ऊपर दोबारा दाखिल नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दाखिल हो जाए, जैसा कि हम कहते हैं ना अर-रूम। हालांकि रूम ये एक जो है ना वो इलाके का नाम है, मुल्क का नाम है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अर-रूम। इसी तरह अल-काहिरा, ठीक है। इस तरह अल-अब्बास, तो अब्बास एक नाम है लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दिया। अल-हसन, अल-हुसैन, अल-मक्का, अल-मदीना, अल-पाकिस्तान। तो मतलब कहने का यह है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो बावजूद मारिफा होने के अरब लोग उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, वो अगर करते हैं तो हम मान लेंगे उनकी बात को, क्योंकि जनाब उनकी जबान है। समझे बात को। उसके अलावा वजह अलिफ लाम दाखिल करने की मैंने अर्ज किया ना कि देखे एक इस्म नकिरा है, नकिरा का मतलब कोई भी हो सकता है, नकिरा उसमें कोई खुसूस नहीं है ना, कोई भी हो सकता है। नकिरा का मतलब कोई भी हो सकता है। मारिफा मतलब कोई खास आदमी मुराद है। मैंने मिसाल दी थी क्लास के अंदर, मिसाल के तौर पे कुछ सारे तलबा हो तो उस्ताद क्या किसी से यदि फला काम कर दो तो सारे उठेंगे, लेकिन नाम ले दे जी जैद करे तो यहाँ पे एक बंदा करेगा। तो मारिफा का मतलब खास है। और मारिफा होगा कब, खास बनेगा कब, जब ये हमें 7 चीजें पता होंगी, इनमें से कोई एक चीज पाई जाएगी तो वो मारिफा होगा। वजह उसकी यह है कि अरब दाखिल करते हैं, बस ये वजह है। अल अब्बास, अल रूम, अल मक्का, अल मदीना, उनकी मर्जी, उनकी जबान है। समझे जी, उनकी जबान है, वो करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मानना पड़ेगा बस। हमें कायदा मालूम हो गया, लेकिन अगर हमें ऐसे कहीं नजर आए तो हम ये कह देंगे जनाब ये तफर्रुदात हैं, अहले अरब के तफर्रुदात हैं, यानी बसा औकात वो कायदे से हटकर चलते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ गई जी बात। और बाकी रही बात तर्जमे की कि मारिफा का तर्जमा क्या होगा, नकीरा का तर्जमा क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है। देखिए जो नकीरा होगा ना, अरब लोग जो नकीरा का तर्जमा करते हैं वो करते हैं इससे, जैसे एक, कोई, ठीक है, या कुछ, ऐसा कुछ अल्फाज होते हैं नकीरा के तर्जमे के लिए। जैसा है ना कलम, अब कलम इसके ऊपर कोई मारिफा की अलामत नहीं है, ना आलम है, ना जमीर है, और ना जो है ना इशारा है, ना मौसूल है, ना मुअर्रफ बिल्लाह में, ना मुज़ाफ इल मारिफा, कुछ भी नहीं है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे जनाब कि अब एक कलम, ये भी तर्जमा हो सकता है, कोई कलम, कुछ कलम, मतलब इस तरह से जो नकीरा होगा तो उसका तर्जमा एक, कोई, ऐसा, कुछ, इस तरह का तर्जमा होगा जिसके अंदर उमूम होगा, ठीक है, कोई खास होने की वजह उसके अंदर नहीं होगी। ये था जी हमारा आज का सबक, आज के पिछले सबक का खुलासा। अब हम चलते हैं अगले सबक की तरफ। ये आपको सबको समझ आ गया? जरा जल्दी से मैसेज करके बता दें मुझे। चलिए अच्छा हो गया जी, आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, अगला है हमारे पास चौथा हमारा टॉपिक, और वो है एराब। जो ये समझे कि अरबी जबान की रीढ़ की हड्डी है, और एराब को हमने जो है ना एक, ये समझे कि उसको केटू पहाड़ बनाया हुआ है कि इसके ऊपर हर कोई नहीं चढ़ सकता। गजनफर भाई ये मैं कल भी 2 दफा बताया, आज फिर मैंने ये शमसी कमरी हरूफ को दोबारा बताया, लेकिन अब आप अगला सबक फिर हम नहीं पढ़ सकेंगे, इसी में लगे रहेंगे। फिर आप ऐसा करें, कल की जो आप मुझसे ये वीडियो मांग लें, मैं आपको ये दे दूंगा, आप उसको सुन लें, ठीक है। लेकिन अभी आगे चलते हैं, या फिर आप क्लास के बाद मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको अलहदा में इंशाल्लाह समझा दूंगा तसल्ली से, आप परेशान ना हो। जी हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी एराब अरबी जबान में रीढ़ की हड्डी रखता है। अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए एराब को समझना इंतहाई जरूरी है, और इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें चंद चीजों का ख्याल रखना होगा और सिर्फ पहचान करनी होगी। अगर वो हमें पहचान कर ली, एक दफा कर ली, तो बस उसके बाद फिर आगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। अब मैं एराब को आपके सामने कुछ इसकी वजाहत के साथ
चलता हूं आगे की तरफ कि एराब अब देखिए जी, आप जब कलीमा पढ़ते हैं ना, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब यहाँ पे देखिए आपने क्या पढ़ा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन पढ़ा आपने। आजान में आ जाइए, अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक हो गई। और ये तो यहाँ पे आपने इसको मुहम्मदन पढ़ा। और इसी तरह दुरूद शरीफ में आ जाइए, वहां पे आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ठीक है। अब देखें लफ्ज एक है, लफ्ज एक है मुहम्मद, लेकिन उसका एराब बदल रहा है, कहीं पे पेश आ गए, कहीं पे जबर आ गया, कहीं पे जेर आ गए। तो ये जो है ना एराब का बदलना, ठीक है, ये कहलाता है जी एराब। इसको कहते हैं कि माना की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत की तब्दीली एराब कहलाती है। बात समझ आई जनाब? माना की तब्दीली के बगैर एराब की तब्दीली, ठीक होगी बात? माना की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत की तब्दीली, हालत बदल रही है उसकी, कभी दो पेश आ गए, कभी दो जबर आ गए, कभी जेर आ गए। जी हाँ, तो ये कहलाता है जनाब एराब। दोबारा नोट कर लें, माना की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत की तब्दीली एराब कहलाती है। ये इस वक्त इसकी बिल्कुल आसान अंदाज में मैंने तारीफ की है इस मौके के लिहाज से, बाकी इंशाल्लाह तफसील फिर जब होगी तो फिर उस वक्त देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने लफ्ज है, यहाँ पर एक किताब। अच्छा, अब ये किताब आप सबसे पहले जो आपने पीछे पढ़ा है, आप उसके बारे में बताएंगे कि जनाब ये किताब, इसकी जिन्स क्या है। तो हमें पता चल गया जनाब ये मुज़क्कर है। नंबर 2 मिरवाहातुन, मेरा ख्याल है आपके माइक ऑन करके आप ही से पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये माइक आपके ऑन है, आप ही मुझे बताएं कि मिरवाहातुन क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है, बोलते ही किसे। जी हाँ, इसमें गोलता इसकी अलामत है और ये मुअन्नस है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप इस चीज को भी नोट करें कि किताब और मिरवाहातुन ये एक हैं या दो हैं या ज्यादा है, कितने के लिए बोला जा रहा है इसको? कुछ पता नहीं। मतलब किताब ये एक किताब है या दो किताबें हैं या ज्यादा किताबें, कितने के लिए बोला जा रहा है इसको? किताब तो एक के लिए, एक के लिए, एक के लिए। जी हाँ, एक के लिए इसको बोला जा रहा है। तो ये जनाब अदद हमें पता चल गया। अच्छा, बाकी साथी अपना माइक ऑफ कर लें, जिस वक्त बताना हो सिर्फ उस वक्त ऑन करें बस। हाँ अभी ठीक है, अभी शोर खत्म हो गया। तो देखिए हमने क्या देखा जनाब, एक इस्म को उठाया और उसमें हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी थी, इस्म की जिन्स। हमें पता चल गया जनाब इस्म की जिन्स यहाँ पे क्या है, किताब की मुज़क्कर है, मिरवाहातुन की मुअन्नस है। क्यों है हमने अलामत बता दी। उसके बाद हमने अगला जो पढ़ा था सबक, वो हमने पढ़ा था जनाब के इसका अदद क्या है, एक के लिए है, दो के लिए, ज्यादा के लिए, कितनों के लिए है ये। तो हमें पता चल गया जनाब किताब और मिरवाहातुन, इसमें मुसन्ना की या जमा की कोई अलामत हमें नजर नहीं आ रही, तो लिहाजा ये वाहिद है, ठीक है। तो ये पता चल गया जनाब कि किताब और मिरवाहातुन ये वाहिद है। आगे चलते हैं जी। अब रजुलानी, आप बताएंगे रजुलानी? मुज़क्कर है और दो हैं। मुसन्ना, जी हाँ, मुज़क्कर है और जो है ना मुसन्ना के लिए। जैसे बिनतानी, ये मुअन्नस है और दो हैं। जी हाँ, देखिए ये हमने इसको पहचान लिया, इसका हमें जिन्स भी मालूम हो गई, अदद भी मालूम हो गया। अलामत क्या थी, आखिर में आने की आवाज आ रही है। मुज़क्कर मुअन्नस की भी हमें पता चल गया कि मुअन्नस की अलामत हमें नजर आ गई, इस वजह से हमने उसको भी पहचान लिया। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर, मुस्लिमून। आप बता सकते हैं ये क्या है? ये जमा है और मुज़क्कर। जमा क्यों है? ऊना लगा हुआ। जी हाँ, इसके आखिर में वाउल जो है ऊना की आवाज आ रही है और वाउल उसके आखिर में लगा हुआ है, जो कि अलामत है मुज़क्कर की जमा की। ठीक हो गया जनाब।
सालिहातुन, ये क्या है जी? ये मुअन्नस है और दो हैं। दो हैं, तो दो की अलामत क्या बताई थी हमने? हाँ, ताने है, ये मतलब वो जमा है। जी हाँ, जमा है। इस जमा की अलामत क्या है? अलिफ और ते। ते नहीं बोलेंगे ना? अलिफ, हाँ ता ता, जी हाँ, ये इसको जरा अलिफ इसके और ता, दायरे ठीक रखें, अलिफ और ता। अलिफ और ता। ठीक हो गया जनाब, ये है जनाब मुअन्नस की अलामत अलिफ और ता। तो ये है जी जमा, और जमा भी कौन सी है जनाब? ये मुअन्नस है सालिहात। ठीक हो गया जमा। साल- ये जमा सालिम कैसे है, आप बता सकते हैं? मतलब ये मालूम है। मतलब क्या, ये जो मुस्लिमूना है, हम कह रहे हैं ये जमा सालिम है, आप इस ये बताएं कि जमा सालिम कैसे है? ये जमा सालिम किसे कहते हैं? जी कोई और भी बोल सकता है अपना माइक ऑन करके। जरा जल्दी कर लें, वरना फिर मैं बताता हूँ। नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई और साथी देखे ना, वो बता दें। जमा सालिम। यार मैंने तो आपके माइक ऑन किए हुए हैं, आपका माइक क्यों ऑफ है? एक बार अगर ऑफ कर दें तो दोबारा ऑन नहीं होता। जी और अभी जमा सालिम इसलिए है कि इसमें लफ्ज टूटा नहीं है, क्योंकि हाँ, जो पिछले लफ्ज सालेह था वो मुकम्मल आया है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मुस्लिम इसका वाहिद था। सालिम इसी वजह से, मुस्लिमून वाहिद था तो जमा में जब आया है तो वो लफ्ज टूटा नहीं है, पूरा आया है। और जैसे हम माइक ऑफ कर देंगे फौरन माइक फिर खुद से ऑन नहीं होता। जी ठीक हो गया, पर अब मैं आपके माइक ऑफ ही कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखिए अभी आपने देख लिया कि अब तक का हमारा पढ़ा हुआ सबक उसको हमने दोहरा भी लिया। ठीक है, कैसे जनाब? इस वक्त तक हमने 3 चीजें पढ़ी थी, आज हम चौथी चीज पढ़ रहे हैं। तो चौथी चीज के अंदर, चौथे सबक के अंदर हमने अपनी पिछली चीजों को दोहरा लिया। क्या क्या पढ़ा था जनाब हमने? पहले जिन्स को पढ़ा, वो हमें पता चल गई और आपने उसकी अलामत भी मुझे बता दी। ठीक है, उसके बाद जनाब हमने अदद को पढ़ा, आपने अदद को भी फौरन पहचान लिया कि जनाब ये मुसन्ना है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ नून आ रहा है और आने की आवाज आ रही है। फिर आपने बताया जनाब ये जमा है, अभी क्यों जमा है? इस वजह से जनाब इसके आखिर में वाव नून आ रहा है और ऊना की आवाज आ रही है, जो जमा मुजक्कर की अलामत है। इस तरह आपने कहा जनाब ये जमा है और जमा मुअन्नस है जी। क्यों? इस वजह से कि इसके आखिर में अलिफ ता आ रहा है, तो ये जमा मुअन्नस की अलामत है। सालिम क्यों है जी? आपने आपने ये भी बता दिया कि जनाब जमा सालिम इसलिए है क्योंकि जो इसका मुफरद था, जो इस जमा का वाहिद था जिसे जमा बनी है, वो वाहिद इस जमा के अंदर बिल्कुल सही सलामत मौजूद है, सिर्फ जमा की अलामत का इजाफा हुआ है। तो जिस जिस जमा के अंदर उसका वाहिद बिल्कुल सही सलामत मौजूद हो, वो जमा सालिम होती है। और जिस जमा में उसका वाहिद टूट जाए, उसमें कुछ रद्दो बदल हो जाए, वो जमा मुकस्सर होती है। तो माशाल्लाह आपको ये सब चीजें याद थी, बहुत अच्छा। उसके बाद अगली चीज जो हमने पढ़ी वो था इस्म के बारे में। इस्म मारिफा हो या नकिरा हो, इस्म का आम और खास होना हमने ये पढ़ा था। तो उसके साथ साथ मैं इसकी भी मश्क अभी हम देख लेंगे आगे थोड़ा सा। अच्छा, अकलामुन, अकलामुन ये आप बताएंगे क्या है? मुज़क्कर है और जमा है। जमा कौन सी है? जमा सालिम नहीं, तकसीर। ये जमा कौन सी है? ये तो बस जमा है मुज़क्कर। कलम जमा से अकलाम बनाए तो मुकस्सर चेंज हो। तकसीर बिल्कुल सही है। ये जमा मुकस्सर है क्योंकि इसका जो वाहिद था कलम से अकलाम बन गया, तो इसका वाहिद इसके साथ बिल्कुल मुकस्सर है नहीं, इसलिए मुकस्सर है। ठीक है, चेंज निसा, जी।
ये मुअन्नस है और औरत नहीं, निसा एक ही औरत है ना, ये तो वाहिद है। ठीक हो गया बनाल। इसकी जमा क्या आती है जी? निसा की जमा बता दें आप, निसा की जमा। और निसाउन या निस्वतुन, ये दोनों तरह से इसकी जमा को लाया जा सकता है। ठीक। अच्छा ये देखिए, ये था जमा मुकस्सर कि जिसके अंदर उसका वाहिद आकर टूट जाता है तो जमा मुकस्सर कहलाता है। तो जनाब ये था जी, ये तीन चीजें हमने देख ली। उसके बाद जी अगली जो चीज थी वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जो हमने उमूम और खुसूस को पढ़ा था। देखिए जैसे अत-तारिक, तो तारिक ये यहाँ पर मारिफा है या नकिरा है? जब उसके ऊपर हमने अलिफ लाम को दाखिल किया तो क्या बन गया जनाब? मारिफा। और इसी तरह से जनाब कलम, ये एक आम है, नकीरा है। आपके माइक ऑफ करने पड़ेंगे। जी हाँ, तो कलम ये नकिरा है, क्यों जी? इस वजह से इसके ऊपर मारिफा की अलामत नहीं है। और इसी तरह जी मजीद, अच्छा जनाब ये तो था हमारा पिछले सबक का, यानी कि पिछले सबक को हमने दोबारा से देख लिया कि जनाब पिछले सबक में हमने क्या कुछ पढ़ा था वो हमने देख लिया, और वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें याद भी है। अब मैं आता हूँ अपनी असल बात की तरफ दोबारा। हम आज पढ़ रहे हैं एराब, ठीक है? एराब मैंने आपको शुरू में बताया कि मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद एक जगह पे मोहम्मदुन पढ़ा जा रहा है, दूसरी जगह पे मोहम्मदन पढ़ा जा रहा है, और तीसरी जगह दुरूद शरीफ के अंदर मोहम्मदिन पढ़ा जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो इसकी हालतें बदल रही हैं, इस माना की तब्दीली के बगैर इस्म की जो हालत बदलती है, इसको एराब कहा जाता है। ठीक होगी बात? और एराब तीन तरह से होता है। एराब की तीन किस्में हैं। एराब की तीन किस्में हैं। नंबर एक रफा, नंबर दो नस्ब, नंबर तीन जर। मैंने आपको बिल्कुल इब्तिदा के अंदर, अगर आपको शायद याद हो, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी उर्दू जबान के अंदर जिसको जबर जेर पेश कहते हैं, अरबी में उसको जम्मा, फतहा और कसरा कहते हैं। याद है ना आपको? और अरबी जबान में हम उर्दू जबान में जिनको जबर जेर पेश कहते हैं, उनको अरबी में क्या कहते हैं? जम्मा, फतहा और कसरा। ठीक है जी, आपको याद है माशाल्लाह। अब वो देखिए, ये दो चीजें अलग अलग हैं, इन चीजों को हम मिक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। जबर जेर पेश अरबी में उसका नाम है जम्मा, फतहा, कसरा। ये बात अब इसको साइड पे कर दो, बिल्कुल अलग कर दो इसको। अब इसका अगली बात से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इसका आगे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब हम आते हैं एराब की तरफ, उस बात को वहीं पे खत्म कर दो। वहां पे सिर्फ हमने नाम बताए थे कि जनाब जबर को जम्मा कहते हैं, फतहा कहते हैं, जेर को जो है ना कसरा कहते हैं, और अपना जबर को अपना फतहा कहते हैं। तो वो बात वहां पे हमने छोड़ दी। अब हमारे एराब की तरफ, तो एराब तीन तरह के होते हैं, एक रफा, दूसरा नस्ब, तीसरा जर। ठीक है जी। और फिर हमें दूसरी बड़ी गलत फहमी ये होती है, हम ये समझते हैं कि रफा पेश को कहते हैं, लिहाजा जिस लफ्ज के भी आखिर में पेश आ जाए हम कहते हैं जनाब बस ये अब फाइल है, ठीक है भाई, ये जो है ना मरफू है। हालांकि खाली पेश ही रफा की अलामत नहीं है। एराब सिर्फ जो है ना रफा में ही नहीं है, बल्कि रफा भी है, उसके अलावा और भी है। जब आप आगे देखेंगे तो आपको मजीद पता चल जाएगा। देखिए, तो इस बात को आप याद रख लें फिलहाल कि एराब कितने हैं जी? तीन। नंबर एक रफा, नंबर दो नस्ब, नंबर तीन जर। अब ये एराब जिस लफ्ज के ऊपर आए, मिसाल के तौर पर ज़ईदुन, ज़ईदुन, तो यहाँ पे ज़ईदुन या इधर मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, इसके ऊपर दो पेश आए ना, तो ये मुहम्मदुन ये मरफू है। क्यों? इस वजह से कि इसके ऊपर दो पेश है। मुहम्मदन ये मंसूब है, नसब है इसके ऊपर, ठीक है? तो इसको कहेंगे जी, इसके ऊपर नस्ब दाखिल है, इसको कहेंगे मंसूब। तो रफा, नस्ब, जर। रफा मरफू से, यानी रफा जिस लफ्ज के ऊपर दाखिल होगा उस लफ्ज को कहेंगे मरफू। नस्ब जिस लफ्ज पर दाखिल होगा उस लफ्ज को कहेंगे मंसूब।
जर जिस लफ्ज पर दाखिल होगा उसको कहेंगे मजरूर। एराब के एतबार से मिक्स नहीं करिएगा, अगर आप मिक्स कर लेंगे दोनों चीजों को तो फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एराब को एराब रखेंगे, एराब सिर्फ 3 है, रफा, नस, जर। बाकी जो जम्मा, फतह, कसरा पड़े वो एराब नहीं है, वो सिर्फ जबर जेर पेश का नाम है, एराब नहीं है, ठीक है। एराब ये है रफा, नस, जर। रफा, ठीक है, किसी लफ्ज पर आए तो उस लफ्ज को कहते हैं मरफू, अगर जबर आ जाए तो उसको मंसूब, जेर आ जाए तो मजरूर, ठीक हो गया। मिसालें आपके सामने हैं कि लफ्ज मुहम्मदुन मरफू है, मुहम्मदन मंसूब है, मुहम्मदिन मजरूर है। अब चलते हैं जी आगे की तरफ ताकि आपको बात मजीद आगे समझ आ सके। अब हमने यहाँ पे एक लफ्ज लिया है, देखिए जैसे किताबुन ये रफा है, किताबन नस्ब है और किताबी जर है। इसी तरह मुअन्नस को ले लेते हैं, मिरवाहातुन, मिरवाहातन, मिरवाहातिन, बिल्कुल आसान, रफा नस्ब जर। इसी तरह जी रजुलानी, ये देखें जी, ये देखें खास बात कि हमने क्या समझा हुआ है कि रफा क्या होता है जनाब, सिर्फ जहां 2 पेश है वो रफा होते हैं बस। हालांकि ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि जिस तरह रफा की अलामत 2 पेश हैं, 1 पेश या 2 पेश वो एक ही बात है। तकरीबन मैंने आपको बताया कि 80-85% वो अस्मा पर तनवीन आती है, तो 2 पेश आ जाए, 2 या 1 पेश आ जाए तो एक ही बात होती है, इससे परेशान नहीं होना। तो देखें ये 2 पेश या 1 पेश ये भी रफा की अलामत है। इसी तरह से रजुलानी, यहाँ पर जो इसके आखिर में अलिफ नून आ रहा है, अलिफ नून आ रहा है, ये भी अपना रफा की अलामत है। यानी अगर किसी इस्म के आखिर में हमें अलिफ नून नजर आए, ठीक है, जो मुसन्ना है, तो मुसन्ना की जो अलामत थी अलिफ नून ये भी मरफू होता है। और रजुलैनी, रजुलैनी, अब रजुलानी है ना, रजुलानी ये तो था इसकी रफी हालत। अब आपको परेशानी होगी क्योंकि एक नई चीज आपके सामने आ रही है, लेकिन सिर्फ आपने ये जो 3 चीजें हैं ना, ये मैं आपके सामने जो चार्ट छोड़ रहा हूं, ठीक है, किताबुन, किताबन, किताबिन, ये तो बिल्कुल आसान है। आगे जो मुसन्ना है इसको आपने याद करना है और जमा सालिम को आपने याद करना है। सिर्फ आपने 2 एराब याद करने हैं, बस सिर्फ 2 एराब, मुश्किल ना बनाइएगा इसको, आपकी मेहरबानी। सिर्फ 2 एराब आपने याद करना है, एक मुसन्ना का एराब याद करना है, एक जमा सालिम का एराब आपने याद करना है। बाकी जमा मुकस्सर भी वो बिल्कुल वाहिद की तरह होती है, यानी कि उसमें भी ऐसे जो है ना, मसाजिदुन, मसाजिदन, मसाजिदिन, उसमें भी कोई नई बात नहीं होती। सिर्फ 2 चीजें हैं, मुसन्ना में जो रफा आएगा वो अलिफ नून के साथ आएगा, और जो नसब और जर होगा वो दोनों के दोनों या और नून के साथ आएंगे। रजुलैनी, ठीक है, 2 आदमी। आप सिर्फ इसको याद करें बस, आगे जब हम इसको चलेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या फायदा है और उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया मुसन्ना मुज़क्कर। इस तरह मुसन्ना मुअन्नस को देखते हैं, बिनतानी, अलिफ नून आ गया, ये भी रफा की अलामत। इस तरह बिनतैनी, ये भी अपना मुअन्नस की अलामत, और वो नजर आ गया। जमा सालिम में जी क्या होगा, जमा सालिम में सिर्फ हमने जो याद करना है, अगर आखिर में जो वाव नून था ये आ जाए तो जनाब ये है रफा, और अगर या नून पहले में था रजुलैनी, यानी कि या से पहले जबर, और यहाँ पे क्या था, या से पहले जेर, यानी मुस्लिमीना, तो ये है जनाब इसकी नस्बी और जर्री हालत।